Hello बच्चों, welcome to the first class of your civic subject of class 7 and today we are going to discuss the first topic of your unit 1 that is on equality. So this is your first session. Let's start with it. तो बच्चों सबसे पहले I would like to tell you that what all points are we going to discuss in our first chapter that is on equality. Okay, so let us see that. The first topic that we are going to discuss is equal right to vote. Okay, this is one of the basic and most important right that every Indian citizen has got, right? Also, we will talk about the other kinds of equality that is present in our society. Then we will talk about recognizing dignity. Also, equality in Indian democracy, how our country India, it has provided equality to each and every citizens of our country. Okay, so we'll look on that. And the last topic that we are going to discuss is issues of equality in other democracies. So we will talk about issues of equality that is prevalent not only in India but also other democratic countries outside India in the world. Okay, so today we are going to start our first session that is equal right to vote. So we are going to talk about that. तो बच्चों क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल्सो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हमारे डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स क्या है, बेसिक फीचर्स क्या हैं. तो यहाँ पे आप लोगों ने ये भी सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑन हाउ आवर कंट्री वर्क्स, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द documents, it is a book of documents that on the basis of which our country is governed, right? So here is the picture of the Constitution of India and this is the preamble, that is the first page of your constitution. You must have heard about the preamble. So the preamble says, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity and to promote among them all the fraternity, assuring the dignity of individual and unity of and integrity of nation. तो बच्चों आपके लिए अभी तक अगर आप लोगों ने प्रेम्बल याद नहीं किया है फिर भी आप ये चीज याद कर लो. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बेसिक फाउंडेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू मस्ट नो व्हाट इज योर प्रीएम्बल, राइट? अब यहाँ पे पॉइंट आउट करने की बात क्या है, द टर्म्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, क्योंकि ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं, राइट? तो अब हम लोग जो आज का डिस्कशन हमारा है वो हमारे इक्वलिटी के ऊपर है. व्हाट इज दिस इक्वलिटी, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, हाउ डज इट फॉर्म द बेसिक राइट एंड ऑल्सो वी विल सी इज आर एवरीवन इक्वल इन आवर कंट्री और नॉट. तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में मेनली कवर करने वाले हैं, राइट? तो बच्चों आप लोगों ने क्लास 6 में जब डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था तो आप लोगों ने की एलिमेंट्स भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में सबसे मेन की एलिमेंट्स क्या होता है. इट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट द बेसिक फंक्शनिंग, रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऑल्सो जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो ये सारी चीजें जो है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स है, की फीचर्स है, राइट? वोटिंग, वॉलंटियरिंग, ओपिनियन, एक्शंस, फ्रीडम, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स. तो ये सारे की टर्म्स है जो हमारे डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है. सो लेट्स सी, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी इज वैल्यूड इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी, राइट? ये आपने पढ़ा होगा. फ्री इलेक्शंस आर हेल्ड, तो इक्वल राइट टू वोट हम इसी में पढ़ने वाले कि ये इलेक्शंस होता है तो इसमें we the citizens of India, adult citizens, we go and vote and elect our representatives, right? People's participation ये elections के through दिखता है, right? और बहुत सारी चीजों में भी rule of law जो जिससे justice हमारे country में भी law के through हमारा country govern होता है, right? Justice is provided to all the citizens, also citizens vote by secret ballot. तो ये सारी main components है हमारे Indian democracy के. Okay. Also, our article in Constitution that is from right to equality. तो बहुत सारे आर्टिकल्स है बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इन आर्टिकल्स के थ्रू बहुत सारे लॉज बनते हैं जिसके थ्रू हमारा कंट्री गवर्न होता है. तो एक लॉ है हमारा राइट टू इक्वालिटी. अब इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो बस अभी आपको मैं एक ब्रीफ आइडिया देना चाह रही हूँ दैट या देयर इज वन
right to equality and it forms the basic right, so that you can know why equality is important for us Indian citizens and how we can fight for it, right? तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको इक्वलिटीज दिखेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, तो ऐसे बहुत सारी इक्वलिटीज है, 4-5 है, इसमें भी सब पार्ट्स होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट आर्टिकल्स में प्रेस्क्राइब्ड है, ओके। नाउ व्हाई इक्वलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि इक्वलिटी एक की एलिमेंट है हमारे इंडियन डेमोक्रेसी का एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. That is why we should know why equality is important. Let's see that. So it is the basic human right, right? ये हमारा equality लेना हमारा basic human right है बच्चों. Also it helps in ensuring wholesome development of every individual without any biases. Now why equality is important? Because ये ensure कराता है कि we are developing one another, every citizen in our country is developing without any बायसेस, मतलब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कोई फेवर नहीं है, एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो या वी इंडिविजुअल सिटीजन्स जो हमारे सिविलियंस हैं, तो एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ. तो सबका डेवलपमेंट होना है, डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्वालिटी. ऑल्सो फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट. तो हमारा कंट्री सेक्युलर क्यों, यहाँ पे सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट किया जाता है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन आर लिविंग हियर. तो अगर हमारा कंट्री इतना सेक्युलर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक रिलीजन को अपनी अपनी इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, राइट? तो इसलिए इक्वलिटी हमारे कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अब बच्चों सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इक्वलिटी को डिफाइन करता है वो है हमारा इक्वल राइट टू वोट. तो आप अपने घर पे हमेशा अपने मम्मी पापा को देखते होंगे कि वो वोट देने जाते हैं. यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाई आई एम नॉट अलाउड टू वोट, राइट? क्योंकि आपके दिमाग में आता होगा कि we are also the part of our country, we are also the citizens of our country, so why are we aren't allowed to vote. लेकिन हमें एक प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अडल्ट सिटीजन, और वो अडल्ट सिटीजन कौन होते हैं? एवरीवन हु इज 18 years of age or more than that they are allowed to vote, और हम ये आगे देखेंगे. बट बच्चों ये एक मैं छोटे एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे ये वोटिंग राइट जो है, ये हमारा इक्वल राइट टू वोट है, ये सबके लिए इक्वल कैसे है, ओके? और फिर अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटीज देखेंगे, कहाँ पे ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि बाकी जगह इक्वलिटीज कहाँ पे नहीं मिलती है, बट राइट टू वोट में एवरीवन इज इक्वल देयर बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेसिक राइट फॉर अस, ओके? तो बच्चों वी विल टॉक अबाउट कांता देवी. नाउ कांता देवी इज वन वुमन who lives in slum, okay, and she is household worker. She goes in a rich family there, she is working as a household worker. So she is कांता देवी, okay. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. कांता देवी she is standing in queue for voting, okay. तो आप देखो बच्चों इस फोटो में यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं लाइन में खड़े होते हुए, राइट? दे आर स्टैंडिंग इन क्यू एंड दे ऑल आर स्टैंडिंग टू वोट लाइक कांता देवी. नाउ लेट्स सी what is the difference between Kanta Devi. Now Kanta Devi, she is working as a household worker in somebody else house and she is living in slum. Here he is Abdul Rahman who is an artisan. Now Shabnam Bano, she is a housewife. तो आप देख रहे हो सबके अपने अपने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस है, कोई रिच है कोई पुअर है. आइजैक लेरबर्ग, ही इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर. अशोक जैन, अब ये अशोक जैन जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, और कांता देवी जो है ना बच्चों ये इसके घर में काम करने जाती है एज अ मेड, राइट? तो अशोक जैन भी इसी लाइन में खड़ा है ना? सो पीपल आर स्टैंडिंग इन क्यू टू वोट. अब देखते हैं कांता देवी के दिमाग में क्या बात है. नाउ कांता देवी इज टेलिंग हर फ्रेंड सुजाता, isn't it good Suja that we all can vote as equal citizens of our country? Even Jan Sahab is standing in line with us. Now Sujata is saying yes. Now you can understand कि यहाँ पे जब वोट देने की बात आती है बच्चों, तो every person, be it a rich person or be it a poor person, everyone is standing for his equal rights in the queue to vote. So irrespective of all the religion, all the sex, gender or community, the rich, poor people, they are standing waiting in queue for their turn to vote. तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबकी अपनी इक्वल राइट है. यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं देख रहा है कि आई एम वेरी रिच तो इसलिए मैं लाइन में नहीं खड़ा रहूंगा, या फिर ये पुअर लोग यहाँ पे खड़े हैं तो मैं इनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा, राइट? So everybody is standing in the queue to vote. Rich, poor people, old people, everyone, young people, whosoever is above the age of 18, right?
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे इक्वलिटी जस्टिफाइड हो रहा है ना, कि रिच पीपल भी, पुअर पीपल भी, सब कोई खड़े हो रहे हैं कांता देवी के साथ ये सारे लोग. इनफैक्ट उसके जो सर हु इज अंडर होम शी इज वर्किंग, ही इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन लाइन विथ हिम एंड शी इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस फैक्ट, राइट. नाउ her friend Sujata is telling, go on Kanta, it's your turn now. Now what is Sujata thinking before voting? She is thinking that I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area. अब बच्चों जब वोटिंग करते हैं ना, तो हमेशा लोग वैसे कैंडिडेट के को वोट करना चाहते हैं who is listening to the local demands of people. और क्योंकि हम इलेक्ट कर रहे हैं एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए, तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे डिमांड्स को पूरा करें, राइट. नाउ शी इज लिविंग इन अ स्लम एरिया, शी इज वरीड अबाउट द पाइप वाटर, शायद उनके एरिया में वाटर स्कार्सिटी होता है, तो कमला देवी इज वोटिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो. नाउ व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दैट? सो पीपल वोट फॉर कैंडिडेट्स हु लुक इनटू द लोकल डिमांड्स. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द इंडियन सिटीजन्स, सबके अपने अपने लोकल डिमांड्स होते हैं, रिच के अपने डिमांड्स होते हैं, पुअर के अपने डिमांड्स होते हैं, राइट. लेकिन हमारा गवर्नमेंट जो है वो हमेशा इट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द होल सोसाइटी. उनको रिच का भी देखना है, उनको पुअर का भी देखना है ना. तो उस हिसाब से सब अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं जो उनको अच्छा प्रोस्पेक्टस देते हैं चीजों का, कि उनके डिमांड्स ऐसे ऐसे, वो अपना एक प्रोफाइल बना देते हैं कि हमारे डिमांड्स ऐसे ऐसे, वी आर गोइंग टू फुलफिल योर डिमांड्स, और इस तरीके से वो अपने वोट्स मांगते हैं, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, यू हैव सीन दिस होल स्टोरी अबाउट कमला देवी who is who works in a slum, and also she is household worker, but she is standing with rich people also in the crowd. Various people of different occupations, they are standing to vote in queue. तो हमारा एक टर्म आता है बच्चों when we are talking about votings. तो वोटिंग राइट में ये बेसिक टर्म जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा दैट व्हाई यू एज अ चिल्ड्रन यू आर नॉट अलाउड टू वोट. अब हम देखते हैं व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. So the Constitution provides for universal adult franchisee. It means that every citizen who is 18 years of age or more is entitled to cast his vote, his or her vote, irrespective of his caste, creed, sex, religion or place of birth. Right? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वोटिंग राइट्स उन्हीं लोगों को मिली है, उन इंडियन सिटीजन्स को मिली है जो 18 इयर्स के हैं और उनसे उससे बड़े हैं, राइट. और वो लोग वोट कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, ऑफ देयर क्रीड, ऑफ सेक्स. मतलब ऐसा नहीं है कि मेन सिर्फ वोट करेंगे, वुमेन नहीं वोट करेंगे, ऑन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पीपल आर फ्रॉम वेरियस रिलीजन. तो सबको ही वोट करते हैं रिलीजन के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ. तो हर जो भी irrespective of all these facts, every citizen who is from India, who is born in India, they are entitled to vote, and this is our basic right. तो एक आपको इक्वेलिटी समझ में आ गया है कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, डिस्पाइट ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज, शायद आप अपने सोसाइटी में बहुत कुछ देखते होंगे, लेकिन ये हर एक इंडियन सिटीजन को ये इक्वल राइट टू वोट मिला है, राइट. तो बच्चों इन शॉर्ट आज हमने क्लास में जो कवर किया है वो है वाई इक्वालिटी. तो आपने देखा इक्वालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा बेसिक ह्यूमन राइट है ना. और इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हर इंसान को, हर एक सिटीजन को वी हैव गॉट द इक्वल राइट टू वोट, बी इट अ पुअर पर्सन like Kamla Devi or be it a rich person like that of the Jan Sahab for whom Kamla Devi is working, right. तो equality of vote ये सबको मिला है. Also हम लोग एक नया टर्म आप समझे, that is universal adult franchisee. And what is universal adult franchisee? That every citizen who is of 18 years of age or more than that can cast his vote irrespective of caste, creed or sex, gender और ऑक्यूपेशन और द प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन. तो इन सब के डिफरेंसेस के बावजूद भी everyone is entitled to vote. I hope your concept is clear. और अब नेक्स्ट क्लास में we are going to talk about कमला देवी. We are going to continue her example. उसकी स्टोरी को आगे समझते हैं और देखते हैं how she discovers that what kind of inequalities are there in the society. क्योंकि उसने देखा कि equal voting rights तो सबको मिल रखा है, लेकिन आगे हम देखेंगे उसकी स्टोरी के थ्रू कि बहुत जगह हम लोग इनइक्वालिटीज भी देखते हैं. ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वालिटी एग्जिस्ट करता है. देयर आर सम इनइक्वालिटीज that is present in our society. We will talk about that in our next section. So, thank you very much. Have a nice day.